Hello everyone, a very good morning and welcome to Plutus IAS. Guys, I am Pratik Tripathi, economics and physics expert. Today we are going to talk on a very grievous topic which has been in news from past few days and which is a very hot topic as of the moment. The topic is the tariffs that are being imposed by Trump government on India. How all this started, what fueled this response. First, there was the tariff of 25%, then the additional tariff of 25%, leading to overall tariff of 50%. How all this happened? The relations, which were assumed or presumed by many to be so strong, what happened that these relations got rusted? What happened that the people of India, many of us who were supporting the election of in US, who were supporting the candidature of President Trump, now the president, at that point of time he was contesting the election. Suddenly what happened that Trump changed and took such stern measures against India. So in this video we are going to discuss each and every aspect, and I'll try to provide you the insight of the topic so that you can understand that actually why these things are happening, what will be the impact of these tariffs on Indian market. Is Indian economy going to suffer, or are we going to thrive just like we had in previous many decades? So I again welcome you all and let's get started with the topic. So guys, Trump's tariff tando navigating US India trade tensions. So see, what happens is that additionally Trump imposed the tariff of 25% on the goods that are going to be exported from India to US. अब ये जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय टैरिफ, टैरिफ का मतलब ही क्या होता है? सो सी गाइस, द मीनिंग ऑफ टैरिफ इज that, let's say, just taking an example, that the tariff of 25% is imposed on Indian goods. So the meaning of it is that, let's say, India exports a watch of 100 rupees, 100 रुपए की वॉच इंडिया ने एक्सपोर्ट करी यूएस में, ठीक है? सो वॉच की कॉस्ट है 100 रुपीज और मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज ही लेकर के चलते हैं। अब अगर ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया है तो ये जो 100 रुपीज की वॉच है, अब इसकी कॉस्ट हो जाएगी 100 रुपीज प्लस 25% टैक्स ऑन इट, दैट इज ₹25. दैट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ द वॉच बिकम्स 125. I am talking in terms of rupees so that you can understand. तो अब 125 रुपीज की वॉच हो गई। यही वॉच पहले 100 रुपीज की अमेरिकन खरीदते थे अमेरिका में, अब सेम वॉच 125 रुपीज की अमेरिकन को पड़ेगी। इट हैज बिकम कॉस्टलियर फॉर अमेरिकन। एंड गाइस वी ऑल नो, अगर कोई चीज कॉस्टली हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो गई तो अब लोग इतना ज्यादा इसको नहीं खरीदेंगे, और जब इतना ज्यादा इसको नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, इंडिया पे इफेक्ट आएगा। इंडिया में जो इंडस्ट्री है जो वॉचेस मैन्युफैक्चर कर रही है, दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू सफर. They have to reduce their production because now not much of their good is being sold abroad since the good has become expensive. ठीक है, तो ये इफेक्ट आता है। ये तो एक इफेक्ट है जो मैंने अभी आपको बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया कि इंडिया पर आएगा, पर ऐसा नहीं है कि इफेक्ट सिर्फ इंडिया पर आए। द इफेक्ट विल बी ऑन यूएस एज वेल। इस टैरिफ का असर यूएस पर भी पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज थिंग्स हैव बिकम एक्सपेंसिव फॉर देम, वहां पर भी इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है? इन चीजों को हम लोग बाद में, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर, बट लेट्स फोकस ऑन this 25 and then again 25, that is 50% tariff that was being imposed by Trump. So see, August 1st 2025, Trump imposes 25% tariff on Indian exports. Okay, अब इस मूव से क्या हुआ, दिस मूव sparkled global headlines but received a measured response from India. That is very important. इंडिया ने इसमें पैनिक नहीं किया, एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया,
ठीक है, अब बात ये आती है कि टैरिफ एक्चुअली ट्रंप ने लगाया क्यों। सो सी गाइस, द बैकग्राउंड इज दैट व्हाट एक्चुअली ट्रंप वांटेड वाज कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है प्लस इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है, ट्रंप वांटेड एंट्री इन दोज सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड डेयरी सेक्टर। मैं आपको पहले डेयरी सेक्टर की बात करता हूं। सी, इफ इंडिया वुड हैव गिवन ओपन एक्सेस टू अमेरिकन गुड्स इन डेयरी सेक्टर, अभी अगर आप डेयरी की बात करें तो जितने भी आप मार्केट चले जाइए, आप जो चीज लेंगे, बटर लेंगे, मिल्क लेंगे, कुछ इंडिजिनस ब्रांड्स हैं, हमारे खुद की कंट्री के ब्रांड्स हैं। वी mostly all of us purchase the dairy products of our Indian brands only. For example, Amul, ठीक है, Mother Dairy, etc. There are many other brands, but the underlying fact is that all these brands are Indian brands, they are indigenous brands. So Indians purchase dairy products of their own companies, in the sense that they're domestic companies, indigenous companies. आप अगर इसमें ध्यान दीजिए तो बहुत कम फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। अब डेयरी का एक बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूमंगस मार्केट है इंडिया में। ट्रंप वांट्स कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ड्यूटीज लगाती है डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो कि अमेरिका से इंडिया आते हैं, उन डेयरी प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया जाए, जिससे कि उन अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स के पास एक फेयर चांस हो यहां इंडिया में कॉम्पीट करने का। इट साउंड्स वेरी जस्ट, बहुत सही लग रहा है कि हाँ, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फॉरेन कंपनीज को भी यहां आ करके डेयरी के क्षेत्र में भी परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। बट सी गाइस, इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कैसे? सी, अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यहां पर आते हैं हमारे इंडियन मार्केट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीपर होंगे। वो चीपर इसलिए होंगे क्योंकि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है दैट इज फार मोर एडवांस्ड देन अस। ओके, सो द मिल्क दैट दे गेट इज इन abundance, okay, and the cost that they incur, the dairy farmers of America, the cost they incur to produce that much quantity of milk is much lesser than the cost incurred by Indian dairy farmers to produce that much milk. तो उनकी कॉस्ट कम है, उनका प्राइस भी कम होगा। तो धीरे धीरे वो हमारे मार्केट को मोनोपोलाइज कर लेंगे, अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट, और हमारी खुद की इंडिजिनस कंपनीज, अमूल, मदर डेयरी, मदर इंडिया और ये सारी कंपनीज ये सबसाइड करती चली जाएंगी। अभी आप देखते हैं तो अमूल ने बहुत बड़ा होल्ड ऑब्टेन कर रखा है इंडियन मार्केट पे, और हर कोई लगभग अमूल और ऐसे ही प्रोडक्ट्स खरीदता है। ये पूरा शिफ्ट आ जाएगा। ये पहला एस्पेक्ट हुआ, यानी कि हमारी इंडिजिनस डेयरी इंडस्ट्री सफर करेगी एंड हेवली सफर करेगी। सेकंड पॉइंट यहां पर ये है गाइस कि अगर आप रूरल फार्मर्स को देखें तो डेयरी जो है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, ये उनके लिए कुशन का काम करते हैं, एक एडिशनल सप्लीमेंट्री इनकम का काम करते हैं। सी, मॉनसून इज अनसर्टेन, राइट, एंड still many farmers, it is unfortunate but it is truth, many farmers of India are heavily reliant, till date they are heavily reliant on monsoon. अब आप सोचिए, अगर मॉनसून डिले हुआ या उतनी अच्छी रेनफॉल नहीं हुई तो जो क्रॉप्स हैं वो सफर कर जाएंगे, प्रोड्यूस सफर कर जाएगा। तो उस टाइम पे उनका साथ ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या मिल्क उन्होंने बफलो या काउ ग्रेजिंग कर रखी, उससे वो मिल्क निकालते हैं और उसको सप्लाई करते हैं, तो उससे जो एडिशनल इनकम आती है वो उनको सपोर्ट कर देती है। अब अगर अमेरिकन मिल्क आ गया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये जो कुशन थी ये धीरे धीरे ड्राई आउट कर जाएगी, क्योंकि अमूल, मदर डेयरी इन्हीं फार्मर्स से मिल्क खरीदता है और इसी मिल्क को वो अपने यहाँ बाकी प्रोसेस के थ्रू, जो भी प्रोसेस है उनके करके पैक करके मार्केट में सप्लाई करता है। तो ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और इन फार्मर्स का जो सपोर्ट इनकम या सप्लीमेंट्री इनकम थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक तो ये लाइवलीहुड का क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप इसको एनालाइज करें।
तो इसलिए ये पहला एस्पेक्ट था कि इंडिया ने डिनाई कर दिया स्टर्नली, सॉरी वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी फ्री एक्सेस इन आर एग्रीकल्चरल और डेयरी मार्केट, और इसने ट्रम्प को अनॉय किया। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं था, ये तो इकोनॉमिकल रीजन था, एक कल्चरल एस्पेक्ट है जो कि इंडिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो कल्चरल एस्पेक्ट? द कल्चरल एस्पेक्ट इज कि जो अमेरिका से मिल्क पाउडर आएगा, मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, चीज आएगा, बटर आएगा, वो बेसिकली रेड मिल्क है। नाउ व्हाट इज दिस रेड मिल्क? रेड मिल्क का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हमारे यहाँ जो काउज हैं, बफलोज हैं, जिनसे मिल्क लेते हैं, उनको जो चारा वगैरह दिया जाता है, फॉडर दिया जाता है, वो एक्चुअली क्या होता है? वो पूरी तरह से वेजिटेरियन फॉडर होता है, राइट? और हमारे यहाँ तो काओ, इनको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अमेरिका में वो जो फीड कराते हैं अपने यहाँ के कैटल्स को, जो फॉडर देते हैं, वो पूरी तरह से वेजिटेरियन नहीं होता है, इनफैक्ट वेजिटेरियन होता ही नहीं है। उसमें स्वाइन पिग्स की स्किन होती है, फैट होता है पिग्स का, बोन्स का पाउडर होता है, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स का, और इन सबको मिला करके प्रोसेस करके फॉडर चारा बनाया जाता है, जो वहां के कैटल्स को फीड कराया जाता है। अब जब कैटल इज गेटिंग फेड ऑन सच, and that too just imagine the fat of animals and that too swine on such fodder, so the milk that would be obtained from that cattle, that milk will also be non-vegetarian, obviously. Red milk, that's why it is referred as red milk. अब ये एक बहुत बड़ी कल्चरल इंप्लीकेशन है इंडियन सोसाइटी पे, क्योंकि हम यहाँ पर काउ को ऑस्पिशियस मानते हैं, वहां पे काउ को नॉन वेजिटेरियन फॉडर फीड करवाया जा रहा है, और उससे जो मिल्क आ रहा है, तो मिल्क हैज बिकम नॉन वेज नाउ, राइट? तो वो इंडिया के कल्चर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि नो, वी कैन नॉट गिव सच एक्सेस टू यूएस डेयरी गुड्स, ठीक है। So इसका a trade dispute over dairy imports with India demanding a strict certification that product come from cow, not fed animal based products। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो इंडियन का हमें सर्टिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन चाहिए कि इनको आप वो एनिमल का जो लेफ्ट ओवर है, जो एनिमल स्किन है, बोन है, वो नहीं फीड करवा रहे हैं, और हम ड्यूटीज कम नहीं करेंगे। और नॉन इंडिया ने इसमें क्या स्टैंस लिया? इंडिया का स्टैंस है नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन रूटेड इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड कल्चरल sensitivities as dairy is sacred। See, as I told you, हमारे यहाँ ऑस्पिशियस माना जाता है, डेयरी इज सेक्रेड इन इंडियन ट्रेडिशन। अब जब ये दो चीजें डिनाई कर दी गई ट्रम्प को डेयरी में एक्सेस नहीं मिला, एग्रीकल्चरल फील्ड में एक्सेस नहीं मिला, so it triggered Trump, and then he imposed 25% tariff on Indian exports, ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ, अगर हम ट्रेड टेंशंस देखें, यूएस डेयरी इंडस्ट्री सीज दिस एज अ बैरियर while India prioritizes cultural and ethical standards, okay। उसके बाद ट्रंप ने जस्ट नेक्स्ट डे 25% टैरिफ के बाद उस टैरिफ को 25% और इंक्रीज कर दिया, और 50% टैरिफ इंपोज हो गया इंडिया पे। और इस पे ट्रंप ने ट्वीट किया है, ही सेड इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज्ड selling it on the open market for big profits। They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA। Thank you for the attention to this matter, President Trump, okay। So फिर उन्होंने 25% टैरिफ और रेस किया, और इस बार रीजन क्या दिया? इस बार रीजन दिया गया कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और ये जो क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इससे रशिया के पास फाइनेंस आ रहा है, और इसी से रशिया वॉर को सस्टेन कर पा रहा है
आपकी यूक्रेन के साथ। तो इसलिए he held India responsible for the lives that were taken in Ukraine. अब इंडिया ने इसमें जो रिप्लाई किया वो बहुत अच्छा रिप्लाई, उम्दा किस्म का रिप्लाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस ने 50% टैरिफ इंपोज किया। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे आया, मेक्स इंडियन एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटेटिव, हिटिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डेयरी, स्टील, एल्यूमिनियम, इफेक्टिंग स्मॉल मीडियम एक्सपोर्टर्स, एमएसएमई पे इसका बहुत इफेक्ट आया। और कई सारे सेक्टर्स, आपके हैंडलूम सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, आपका श्रिम्प्स एक्सपोर्ट का सेक्टर हो गया, ज्वेलरी का सेक्टर हो गया, इन सारे सेक्टर्स पे इसका इंपैक्ट आएगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर व्हेन वी स्टार्टेड, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब जो इंडियन एक्सपोर्ट है, इंडियन गुड्स दैट विल गो इनटू द यूएस मार्केट, दोस गुड्स विल बी एक्सपेंसिव, और इनके जो काउंटर पार्ट गुड्स हैं वो चीप होंगे। सो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स आर गोइंग टू परचेज other goods, they would avoid Indian goods because Indian goods have become expensive, और इस चीज का इंपैक्ट हमारी इन इंडस्ट्रीज पर आएगा। इस पे इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया? इंडिया व्यूज टैरिफ्स एज अनफेयर, रिटेलिएटिंग with its own hikes on US goods and raising concerns at WTO. इंडिया ने कहा ये अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है कि हम पे टैरिफ लगाया जा रहा है विदाउट प्राइम एंड रीजन, और इस पे इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया। इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने विद डेटा इस चीज को रखा है कि आप हमारे इंपोर्ट की बात कर रहे हैं रशियन ऑयल की, लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन करता है, अभी भी कर रहा है, करता आया है रशिया से। चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो अलग अलग एस्पेक्ट्स की चीजें हों, ये सब यूरोपियन यूनियन लगातार लेता चला आ रहा है रशिया से, और ये बिलियंस में है। इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन, आपको इस चीज को भी देखना चाहिए। देन इंडिया पॉइंटेड आउट नॉट ओनली दिस, अमेरिका खुद यूरेनियम के और अलॉयज वगैरह खरीद रहा है अभी भी रशिया से इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड ऑल। तो यूएस खुद अभी भी रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, और आप हम पर दिस 25% का पनिशमेंट टैरिफ, जो एडिशनल टैरिफ आपने लगाया है, ये इंपोज कर रहे हैं। तो ये कहां तक जस्टिफाइड है? इट इज अनजस्टिफाइड। दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट गिवन बाय फॉरेन मिनिस्ट्री सेड अनजस्टिफाइड, because you yourself are importing, European Union, your very big business ally is importing, there is no penalty for them, and since we are weaker than US, so you are trying to put the blame on us. You are saying we are responsible for all the killings that happened in Ukraine. So in that way, European Union is responsible also, and US is also responsible, और यूरोपियन यूनियन तो फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं रशिया से। इंडिया का ये स्टेटमेंट आया, राइट गाइस। अब लेकिन इंपैक्ट क्या होगा? ये जो 50% टैरिफ है जो अब इंडिया पे इंपोज हो गया है, लेट मी रिमाइंड यू, 25% टैरिफ जो लगा था वो 7th यानी कल से एक्टिव हो चुका है, और जो एडिशनल 25 लगा है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, वो 27th से एक्टिव होएगा, 27th ऑफ अगस्त से। लेकिन इसका इमीडिएट क्या इंपैक्ट होगा? इंडिया की अगर बात करें तो 87 बिलियन डॉलर्स का एनुअल एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो इंडिया यूएस को एनुअली एक्सपोर्ट करता है। अब इन टैरिफ्स की वजह से हमारी जीडीपी पे 0.2 से 0.4% का इंपैक्ट आएगा। तो ये मिनिमल इंपैक्ट है, मतलब आप अगर ये कहिए फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में जो एस्टिमेटेड हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो आपकी 6.5% है, तो 6.5% ना हो करके मैं मान लेता हूं 0.5 का भी वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के 0.5 का भी इंपैक्ट आया तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6% हो जाएगी। तो एक मिनिमल इंपैक्ट आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है कि पैनिक मोड में आया जाए, ठीक है। और इसीलिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कुछ खास करेक्शन नहीं आया है,
ड्यू टू दिस टैरिफ दैट वाज imposed by US. ठीक है, 2 to 3% of India's GDP, US exports constitute a small fraction of India's GDP. जो US एक्सपोर्ट है अब वो हमारी पूरी जीडीपी का मात्र 2-3% है, क्योंकि मात्र 2-3% ऐसा कोई मेजर नहीं है. ओके, सो नो नीड टू पैनिक गाइस. फाइन. उसके बाद इंपैक्ट आपने देखा, क्योंकि देखिए ट्रम्प इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्टली. उन्होंने उन गुड्स को, सर्विसेज को टैरिफ के बाहर रखा है, टैरिफ उन पे नहीं लगाया है. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो क्रूशियल हैं यूएस के लिए. यूएस उन गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं और से नहीं खरीद सकता, तो उन पे टैरिफ नहीं लगाया है. टैरिफ उन्हीं पे लगाया है, इसीलिए 2 to 3% का टोटल है, लेकिन हम पे इंपैक्ट सिर्फ 0.2 से 0.4% का आ रहा है, क्योंकि सब पे नहीं लगाया टैरिफ, सिलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया. ठीक है, जो यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि यूएस कहीं और से नहीं परचेज कर सकता है, वहां पर कोई टैरिफ नहीं है. ओके, अगर हम सेक्टोरल एक्सपोजर की बात करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सब पे नहीं लगा है, तो कौन से सेक्टर हैं जिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा? द सेक्टर्स दैट विल फेस द हीट. सो शॉर्ट टर्म अगर स्ट्रेस सेक्टर्स की बात करें तो टेक्सटाइल पे इंपैक्ट आएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट, सी फूड, जो कि मैंने श्रिम्प आपको बताया है कि. और जो रेजिलियंट सेक्टर हैं जिन पे ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, वो फार्मास्यूटिकल्स हो गए, आईटी सर्विसेज हो गए और हाई एंड इंजीनियर हो गई. ठीक है, सो एक्सपोर्टर्स इस टाइम इंडिया के किस तरफ ध्यान दे रहे हैं? वो अपना यूएस मार्केट को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे नेशंस, दूसरे मार्केट एरिया में, जिससे कि वो ये जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ रहा है इसको भी मिटिगेट कर सके, ये उनके बिजनेस के लिए नुकसानदेह ना हो. अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इंडिया ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. सो इंडियाज मैच्योर रिस्पॉन्स, दैट इज डायलॉग नॉट द ड्रामा. सो पहली चीज, स्ट्रैटेजिक पेशेंस, नो टिट फॉर टैट टैरिफ्स. इंडिया ने कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया ट्रंप पे, जैसा कि हम लोगों ने इस ईयर की स्टार्टिंग में देखा था, जब ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो चाइना पे 25% टैरिफ लगाएंगे. चाइना ने रिटेलिएट किया. चाइना सेड ओके, वी आर आल्सो गोइंग टू इंपोज 25% टैरिफ ऑन यूएस गुड्स. ट्रंप ने उसको इंक्रीज किया. चाइना ने कहा ओके, नाउ वी आर आल्सो इंक्रीजिंग. इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, पेशेंस शो किया. पेशेंस इज अ वर्च्यू. और कोई टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी नहीं, कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं. ऑप्टिंग फॉर काम एंड मेजर्ड डिप्लोमेसी. और साथ ही साथ हमारी ट्रेड डील्स नेगोशिएशन अभी भी यूएस के साथ चल रही है. दैट फ्रंट इज स्टिल ओपन. एक्सपेक्टेड है इस मंथ में एक यूएस की तरफ से कम्युनिटी आएगी यहां पर, जो कि ट्रेड से लेकर के इंडिया से बातें और होंगी, नेगोशिएशंस होंगे. सो दैट फ्रंट इज स्टिल ओपन. प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट, कॉमर्स मिनिस्टर अश्योर्स प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स, वर्कर्स एंड एमएसएमईज. देखिए, इंडिया ने इसके लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो आल्सो ऑन दैट. इस पे मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा गाइस, 7-8 वीडियोस की, और इसके हर एक सेगमेंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. आज इसका पहला पार्ट था, तो आज तो मैं आपको बस प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके इम्पैक्ट्स बता रहा हूं. इंडियन गवर्नमेंट ने इस हाइटेंड टैरिफ इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए एक 20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए, जिससे कि इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें. कैसे क्या वो करेगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एनीवे, रेजिलिएंट टाइज, इंडिया ने ये भी फोकस किया. MEA emphasizes that US-India ties are resilient and not defined by शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस. कि हमारी टाइज बहुत रेजिलियंट है. ये छोटी मोटी दिक्कतें जो शॉर्ट टर्म में आती हैं, हर रिलेशन में आती हैं, इससे हमारे ओवरऑल रिलेशन, हमारे यानी इंडिया यूएस के ओवरऑल रिलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा. आप रिस्पॉन्स देखिए इंडिया का कितना कैलकुलेटेड एंड विजडमफुल है, क्योंकि ये जो टैरिफ लगा है इंडिया पे 50% एज ऑफ नाउ, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है. पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज पे यूएस ने इतना टैरिफ लगाया है, एक है इंडिया, दूसरी है ब्राजील. ओके, मूविंग ऑन. अब इसमें हिडन कॉस्ट फॉर यूएस अमेरिकन कंज्यूमर्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ठीक है,
हमारे गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे यूएस मार्केट में, तो हमारे गुड्स का कंजम्पशन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग एकदम से हमारे गुड्स छोड़ देंगे, काफी लोग खरीदेंगे भी, और जो खरीदेंगे तो गुड्स एक्सपेंसिव हो गए तो उनकी कंट्री में भी इन्फ्लेशन आएगा. So, vital supply chains. India is crucial to US supply chains in pharma, electronics, jewelry and smartphones. इंडिया यूएस के लिए बहुत जरूरी है फार्मा के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, ज्वेलरी के और स्मार्टफोन्स के पार्ट्स के, ये हम ही सप्लाई करते हैं यूएस को. इंडिया नाउ, कैनालिस्ट की रिपोर्ट है, इंडिया नाउ सप्लाइज 44% ऑफ यूएस स्मार्टफोन इंपोर्ट्स up from 13% in 2024. 44% हमारी तरफ से सप्लाई है स्मार्टफोन के केस में. ठीक है, अब देखिए, ये जब हम पर टैरिफ लगा था उसके बाद इंडियन मिनिस्ट्री ने भी अपना एक रिस्पॉन्स दिया था, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. खैर, तो मैंने आपको बता दिया किन पे ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, और ये जो रशियन ऑयल परचेसेस पे भी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है. अब बात को ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अभी से रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया हो. आफ्टर कोरोना रशिया का ऑयल सबसे ज्यादा चीप था और इंडिया उस ऑयल को ले रहा था, और ये बात यूरोपियन यूनियन को मालूम था, और तब के प्रेसिडेंट यूएस के उनको भी मालूम था. ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं रोका इंडिया को, क्योंकि अगर आप इंडिया को रोकते ऑयल परचेस करने से तो यहां पर सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट आ जाता. सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये होता है गाइस कि अगर इंडिया रशिया से नहीं खरीदेगा तो कहीं और से खरीदेगा, तो जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, और अगर डिमांड ऑयल की बहुत ज्यादा हो गई सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे. ऑयल मार्केट में तहलका मच जाता अगर प्राइसेस इतने शूट अप कर जाते. तो इसलिए एक वाइज डिसीजन था ईयू और यूएस का कि इंडिया को वी शुड नॉट स्टॉप, लेट देम परचेज, वरना यहां पर सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाएंगे. लेकिन ट्रंप इन चीजों को अब इग्नोर कर रहे हैं, और इंडिया ने कोई ऐसी कसम नहीं खाई है कि हमें रशिया से ही लेना है. द थिंग इज कि हम उसको इकोनॉमिकली देख रहे हैं, हमारे लिए चीपेस्ट है वो. इंडिया यूएस से भी ले लेगा, आप दीजिए उस रेट पे, पर यूएस इज नॉट रेडी टू गिव. तो प्रोडक्ट जिनमें हाई ड्यूटीज लग रही है, ऑर्गेनिक केमिकल्स, अपैरल्स, निटेड एंड वोवन, कारपेट्स, टेक्सटाइल के जो मेडअप्स हैं, जेम एंड ज्वेलरी, मशीनरी, फर्नीचर, 54%, 63.9, 60.3, 52.9, 59, 52.1, 51.3, 52.3. तो ये जो सेक्टर्स हैं सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं. टेक्सटाइल एंड अपैरल्स 10.3 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी 12 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, श्रिम्प एक्सपोर्ट 2.24 बिलियन, लेदर एंड फुटवेयर्स जो टेनरीज है इंडिया की 1.18 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट होता है, केमिकल्स 2.34 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, मशीनरी अप्लायंस 9 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है. इन पे मेजर इंपैक्ट आएगा. ओके, अब ये जो ट्रंप की स्ट्रैटेजी है, एक्चुअली ही आल्सो डज नॉट मीन व्हाट ही इज डूइंग. ओके, ही इज जस्ट ट्राइंग टू थ्रेटन. सो ट्रंप्स स्ट्रैटेजी, इट्स अ पॉलिटिकल थिएटर, ही इज एक्टिंग और सम सॉर्ट ऑफ थिंग. क्लासिकल ट्रंप मूव, थ्रेटन, पहले डराइए टैरिफ वगैरह से, डिसरप्ट, तो काम जिस कंट्री को आप डराएंगे वो डर जाएगा, पैनिक में आएगा, उसका काम डिस्टर्ब होगा. बैक ट्रैक, फिर उसके नेगोशिएट करके पीछे हो जाइए जो आपने कहा था. डिजाइन टू क्रिएट प्रेशर, नॉट रिजॉल्व. तो इनकी इन स्ट्रैटेजीज से चीजें प्रेशर बनाती हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती हैं. मिक्स्ड मैसेजिंग, वन डे इंडिया इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, नेक्स्ट डे डेड इकोनॉमी. डेड इकोनॉमी पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे. कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, एक दिन पहले बोल रहे हैं कि इंडिया तो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, अगले दिन आकर के कह रहे हैं कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है. रात में मूड चेंज हो गया. हाँ, पहले किसी भी कंट्री को डरा देंगे, उसका काम डिस्टर्ब कर देंगे, नेगोशिएट करेंगे, फिर अपने वर्ड्स पे पीछे आ जाएंगे, वर्ड्स की वैल्यू नहीं है. इससे क्या होगा, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, डीपर टेंशंस. यूएस डिमांड्स रिमूवल ऑफ इंडियन टैरिफ्स while maintaining its own and wants open agriculture and dairy sector. यूएस खुद तो टैरिफ लगा रहा है,
और हमसे कह रहा है कि हम आपके गुड्स पे टैरिफ लगाएंगे, आप हम पे मत लगाइए, और अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर भी हमारे लिए खोल दीजिए, जो कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कहां तक जस्टिफाइड है? अब इसमें इंडिया की काउंटर स्ट्रेटेजी डाइवर्सिटी एंड डीपेन। इंडिया अपना मार्केट शिफ्ट कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट को यूरोपियन यूनियन, यूके, एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट की तरफ अब डेविएट कर रहा है। इंडिया यूके के बीच में एफटीए साइन हुआ, यू ऑल नो, प्रोजेक्टेड टू बूस्ट जीडीपी बाय 500 बिलियन। इससे हमारी जीडीपी को 500 बिलियन का बूस्ट मिलेगा। डोमेस्टिक पुश, फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, एफटीएस एंड रेजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए पीएम मोदी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा भी है कि अब शॉपकीपर्स हो या कंज्यूमर्स हो, उनको फोकस करना चाहिए मेड इन इंडिया गुड्स पर, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है। हमें वो गुड्स लेने चाहिए जो पहले ले लिया उनको हटाइए। कोई भी नया गुड, कोई भी नई सर्विस आप ले रहे हैं तो इस चीज पे आप ध्यान दें कि क्या वो मेड इन इंडिया है। इस टाइम पे आपको नेशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो इंडियन इकोनॉमी फिर से अपना रेजिलियंट, जो कि हमेशा इंडिया ने दिखाया भी है। अब 70s की बात करें तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर था न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करने पे, शी रिफ्यूज्ड। 1997 की बात करें, पोखरण टेस्ट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट पे सैंक्शंस लगाए यूएस की तरफ से, मगर फिर से इंडियन इकोनॉमी ने रेजिलियंस दिखाया। वी रिफ्यूज टू नील डाउन। हमने हर बार ये मैसेज दिया है दैट वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी हैव राइट टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर अस and we are not going to tolerate any external interference in this. This is our right. We know what is good for our economy, we know what will be better for our people, right? और ये थर्ड इंसिडेंस है, फिर से इंडियन इकोनॉमी अंडर मोदी जी इज डूइंग द सेम थिंग। हम ये दिखा रहे हैं वी आर रेजिलिएंट इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू बी चाइल्डिश, वी आर नॉट गोइंग टू रिटेलिएट, nothing. We are going to find alternative ways, alternative markets we are going to look for, and we are going to boost our domestic production. That's what the permanent and long-term solution is. Okay, so guys, that's it. This was the first video of this series. We'll meet you in the next video. Okay, and I'll tell you and give you more insight on what's happening in this tariff tando that is being started by Trump. Thank you. I hope you understood everything.